Assalamu alaikum student, welcome you in Kainat online classroom. I am Mrs. Kehkashan, your SST teacher. Today I am going to tell you about globe. Student, have you seen this model? This is called globe. This is the model of the earth globe. As we all know that the shape of the earth is a sphere and it is impossible to see it as a whole at a time. So man developed a small but exact model of the earth to view it as a whole. यानी अर्थ को हम एक ही बार में पूरा नहीं देख सकते, तो अर्थ को एक नज़र में पूरा देखने के लिए इंसान ने उसका एक छोटा स्वरूप बनाया, उसका एक छोटा मॉडल बनाया जिसे हम ग्लोब के रूप में जानते हैं. स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ग्लोब, सो लिसन इट वेरी अटेंटिवली एंड वॉच इट वेरी केयरफुली टिल द एंड. You can see that a metal piece or pole runs through the globe in a tilted manner, that is called its globe. यानी अर्थ में आप tilted manner में अर्थ को अपने एक्सिस पर झुका हुआ देखते हैं और एक पोल्स जो है मेटल का वो आपको दिखाई देता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सिस. Axis is an imaginary line on which the earth rotate. Earth complete its one rotation. Rotate like this. When earth moves like this, it is called rotation. The earth complete its one rotation in 24 hours. Rotation causes day and night. The end point of axis are called the North Pole and the South Pole. Have you seen? This end point of axis is called North Pole and this end point of axis is called South Pole. Have you seen an imaginary line drawn around the earth exactly midway between the two poles is called the equator? You can see it here. Have you seen? This line is called equator. It divides the earth into two halves, into two equal halves. यानी ये अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है. द अपर हाफ्स इज कॉल्ड नदर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर हाफ्स इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर. द इक्वेटर एंड द स्मॉलर सर्किल ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर इन द नदर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. ये जो आपको इस तरह की लाइंस दिख रही हैं, इक्वेटर, it is also a parallel line of latitude. Equator is the bigger line of latitude, but all the parallel line of latitude are smaller than the equator. यानी इक्वेटर सबसे बड़ी लैटिट्यूड होती है, जबकि और नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में जो लाइंस होती हैं वो इक्वेटर से छोटी होती हैं. You can see that the distance between two lines are equal. दोनों लाइनों के बीच की दूरी जो होती है वो अपने आप में इक्वल होती है. The semicircle which joins the North Pole and the South Pole and also cut the parallel of latitude at right angle are called the meridians of longitude. यानी ये जो lines which join the North Pole and the South Pole. Have you seen? These lines which join the North Pole and South Pole are called meridians of longitude. तो इस तरह की लाइन जो अर्थ पर पाई जाती हैं इन्हें हम पैरेलल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, और जो इस तरह के लाइंस ग्लोब के ऊपर हमें देखने को मिलती हैं ये मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं. ऑल आर इमेजिनरी लाइन. Lines of latitude यानी parallel lines of latitude are helpful to know the temperature of any place, and the lines of longitude, meridian of longitude, also helpful to locate any place and to know the time of any place. यानी किसी भी जगह के समय को जानने के लिए, किसी भी जगह की लोकेशन को जानने के लिए लॉन्गिट्यूड बहुत हेल्पफुल होती हैं, और किसी भी जगह के टेम्परेचर या क्लाइमेट को जानने के लिए लैटिट्यूड लाइंस बहुत हेल्पफुल होती हैं. नाउ यू कैन सी इट ऑन द ग्लोब. हैव यू सीन सच टाइप ऑफ लाइन? These are parallel lines of latitude and you can see the line. You can see the line. Look at here. Such type of line which join the North Pole and the South Pole are called meridians of longitude, and such type of lines are called parallel of latitude. Now I am going to tell you about temperature zone. Look at this picture.
लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज इक्वेटर, इक्वेटर इज इन 0 डिग्री, यानी इक्वेटर जो होता है वह 0 डिग्री पर होता है। इक्वेटर से ऊपर का पार्ट जो होता है ये टॉरिड जोन में होता है, लेकिन उससे ऊपर जाने पर 23.5 डिग्री नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में जो होता है ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। नदर्न हेमिस्फीयर में ही उससे ऊपर जाने के बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ में हमारा आर्कटिक सर्किल पाया जाता है, और जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री नॉर्थ होता है। इसी तरह 0 डिग्री यानी इक्वेटर से नीचे आने पर सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, और उससे नीचे आने पर 66.5 डिग्री साउथ ये हमारा एंटार्कटिक सर्किल होता है, और जबकि साउथ पोल 90 डिग्री होता है। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट लाइन ऑफ पैरेलल। There are 181 degree of latitude on the whole, 90 in northern hemisphere and 90 in southern hemisphere। यानी पैरेलल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड जो होती हैं वो 90 तो नदर्न हेमिस्फीयर में होती हैं और 90 सदर्न हेमिस्फीयर में। टोटल 181 होती हैं, क्योंकि एक इक्वेटर को भी काउंट किया जाता है। यू कैन सी स्टार्ट फ्रॉम हियर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 and 90 what 180, and we can add equator also, so it is 181. Now I am going to tell you the temperate zone. Equator is in 0 degree, but the upper part of equator is torrid zone, and the lower part of equator is also torrid zone. It is in northern hemisphere, it is in southern hemisphere. टॉरिड जोन से ऊपर जाने के बाद जो हिस्सा होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, जो कि टेम्परेट जोन होता है, जहाँ ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जबकि नियर द इक्वेटर द एटमॉस्फेयर द क्लाइमेट इज़ टू हॉट, बहुत गर्म होता है इक्वेटर के करीब आने पर। यानी इक्वेटर के करीब टॉरिड जोन नदर्न हेमिस्फीयर टॉरिड जोन में और सदर्न हेमिस्फीयर टॉरिड जोन में मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेट जोन होता है, टेम्परेट यानी मौसम ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा होता है। इसी तरह टॉरिड जोन सदर्न हेमिस्फीयर में टॉरिड जोन से नीचे आने पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पर भी मौसम कैसा होता है, टेम्परेट होता है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाने के बाद नदर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्किल होता है, जो कि फ्रिजिड जोन होता है। फ्रिजिड जोन ये बहुत ही ठंडा मौसम होता है। और इसी तरह एंटार्कटिक सर्किल में आने के बाद सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर भी फ्रिजिड जोन होता है, यहाँ का भी मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। सो स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टैंड अबाउट द ग्लोब? नाउ यू हैव वॉच इट वेरी केयरफुली and you can try to understand it. Look the video again and again so that you can understand very well about globe.